بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید میں خوش آمدید۔ پچھلے اتوار کو ایک ویڈیو میں آدھے گھنٹے کا لیکچر آپ کی نظر کیا، جس کو بہت پسند کیا گیا۔ 24,000 کے قریب لوگوں نے اس کو واچ کیا اور دل لگا کے سنا۔ کمنٹس آئے، کمنٹس میں یہ بات کی گئی کہ آپ نے قواعد تو پڑھا دیے ہیں، اس کی مشق بھی کروا دی جائے۔ تو میں آج آپ کو مشق کرواؤں گا۔ سب سے پہلے وہ 15 قواعد آپ کے سامنے رکھ دوں گا، 15 آوازیں، اور ان آوازوں کو اردو میں بیان کیا ہے، اور اسی بات کو آپ لوگوں نے پسند فرمایا۔ چونکہ عربی اصطلاحات ذرا مشکل ہوتی ہیں، تو اردو میں ہر عام آدمی اس کو سمجھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ویڈیو کو 13 سال کے بچے سے لے کر 70 سال کے بوڑھے نے بھی سنا ہے۔ پریکٹس کی بات کی گئی کہ تلاوت کر کے دکھائیں، پریکٹس کروائیں۔ تو درس تجوید کی پلے لسٹ میں 50 ویڈیوز میری پڑی ہوئی ہیں، جس میں پریکٹس موجود ہے۔ لیکن پھر بھی میں اس سیری کو مکمل کروں گا انشاءاللہ۔ 7-8 لیکچرز میں کوشش کروں گا کہ ہمارا یہ کام مکمل ہو جائے، اور چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں آپ کے سامنے یہ سبق رکھ دیا جائے۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ آوازیں دیکھیں کہ موٹی آواز، پھنستی آواز، ٹکراتی آواز، ٹھنڈی آواز، نرم آواز، سخت آواز، چلتی آواز، لمبی آواز، بہت لمبی، رکتی کلکلاتی آواز، رک کر چلتی اور مڑتی آواز، گنگناتی آواز، چھپتی ہوئی آواز، موٹی اور باریک آواز۔ تو یہ ایک قسم کی 15 آوازیں ہیں جو پچھلے لیکچر میں نے بتائی تھیں۔ موٹی آواز میں بتایا کہ یہ جو 7 حروف ہیں، ان کی آواز ذرا موٹی ہوتی ہے اور منہ ذرا بھر جاتا ہے، زبان تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس کرتی ہے، جیسے خ، ص، ض، غ، ط، ق، ظ۔ اس میں موٹا کرتے ہوئے آواز کو ہونٹ گول نہ ہونے پائیں، بلکہ نارمل انداز میں منہ کھلے گا۔ ان حروف کے نام میں نے نہیں لیے، صرف آوازیں بتائی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ کسی حرف کی آواز کی مشق کرنی ہے تو اس پر جزم پڑی جائے گی، تو تب اس کی اصل آواز اتنی ہی آئے گی جتنی کہ بنتی ہے۔ جیسے ہم اس کے شروع میں اگر آ لگا کے اس کو ساکن کریں تو پڑھیں گے اخ، اص، اض، اغ، اط، اق، اض۔ ان کے مخارج میں نے پچھلے لیکچر میں بتائے تھے۔ یہ پھنستی ہوئی آواز ہے آ، جیسے آ۔ تو اس کی پریکٹس کرنی ہو تو اوپر منہ کر کے نکالیں آواز آ، تو یہ پھنسے کی آواز، تو یہی عین کی آواز ہے۔ حمزہ کو ہم ادا کر لیا کرتے ہیں، لیکن اس پہ دیکھیں آواز ٹکرا جاتی ہے، جھٹکا ایک لگتا ہے، جھٹکتی ہوئی آواز ہے۔ یہ ٹھنڈی سی آواز نکلتی ہے کر کے ہا، تو اس کے مقابلے میں یہ ہے اس سے ملتا جلتا حرف ہا۔ تو یہ سینے کے یعنی حلق کے آخر سے نکل رہی ہے، اور ہا یہ شروع سے۔ نرم آواز ہے ت، ذ، ظ۔ یہ زبان جب اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگتی ہے تو نرمی سے یہ آواز ادا ہوتی ہے۔ سخت آواز ہے ز، س، ص۔ زبان جب نیچے کے مسوڑوں سے لگتی ہے تو آواز سخت ہو جاتی ہے۔ چلتی آواز یعنی اگر اس کے اوپر یہ نشان لگا ہو حرف کے تو آواز اوپر جائے گی، اوپر چلی جائے گی۔ نیچے یہ لکیر لگی ہو تو نیچے جائے گی، اور اس طرح کی مڑی ہوئی لکیر اوپر ہو تو آواز سامنے چلی جائے گی۔ اوپر کو فارسی میں زبر، نیچے کو زیر اور سامنے کو پیش کہتے ہیں۔ تو زبر کا مطلب ہے کہ زبر والے حرف کی آواز اوپر جائے گی با، زیر والے کی نیچے آئے گی بی، پیش والے کی سامنے جائے گی بو۔
पेश पड़ते हुए होंठ चोंच की तरह हो जाएंगे, जैसे परिंदे की चोंच। लंबी आवाज़ ये है कि ये ज़बर जो है ये पड़ी ना हो बल्कि खड़ी ज़बर हो। पड़ी ज़बर इसको कहते हैं, यूं ये पड़ी हुई है, और खड़ी है कि यूं खड़ी हुई है। तो खड़ी ज़बर हो तो ये आवाज़ डबल हो जाती है पड़ी की निस्बत। बा, बी, बू, ये लंबी आवाज़ है। और अगर इसी लंबी आवाज़ के आगे हमज़ा आ जाए, जैसे यहाँ आ रहा है बा आ, बी आ, बू आ, तो ये 3 से 4 गुना लंबी हो जाती है। आवाज़ को लंबा करने का तरीका ये है कि अगर पड़ी आवाज़ को लंबा करना चाहें तो आगे अलिफ आना चाहिए, ज़बर के बाद अलिफ, ज़ेर के बाद या जज़म वाली, पेश के बाद वाव जज़म वाली हो, तो ये आवाज़ें ज़बर ज़ेर पेश वाली भी लंबी हो जाती हैं। गोया ज़बर ज़ेर पेश खड़ी हो जाएं तब भी लंबी आवाज़ हो जाती है, और ज़बर ज़ेर के पास ज़बर ज़ेर पेश के बाद अलिफ वाव या आ जाए, लेकिन या और वाव का साकिन होना ज़रूरी है, तो तब भी आवाज़ लंबी हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस आइंदा लेक्चर्स में आएगी इंशाअल्लाह। और अगर छोटी ये मद है, लंबी आवाज़ के आगे हमज़ा आ जाए, चाहे वो अलिफ की सूरत में हो चाहे हमज़ा आइन की सिरे की सूरत में हो, जो आम तौर पे लिखा जाता है, तो आवाज़ गैर मामूली लंबी हो जाएगी। बा आ, बी आ, बू आ, इस तरह हो जाएगी। एक है रुकती हुई आवाज़, अगर हरफ पर जज़म आ जाती है तो आवाज़ थम जाती है, रुक जाती है, जैसे अत, इत, उत। और कलकलाती आवाज़, ये 5 हरफ ऐसे हैं जिनके ऊपर कलकला पैदा होता है, यानी ज़बान, यानी वो हिस्सा जिससे मुंह का वो हिस्सा जिनको मिलाने से हरफ अदा होता है वो लग के आप फिर हट जाता है फौरी। मसलन ज़बान तालु से लग के फिर हट जाती है, अतो, इतो, उतो, तो ये कलकला पैदा हो जाता है। इसी तरह अक, इक, उक, अज, इज, उज, अब, इब, होंठों से अदा होता है ना हरफ बा, तो 2 होंठ आपस में मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं फौरी, तो वो कलकलाहट सी पैदा होती है। इसी तरह दाल है अद, इद, उद, इसको कलकला कहते हैं। रुक कर आगे चल जाती है आवाज़, जैसे तब्बा, तब्बा, ये जब शद आ जाए, ये 3 किंगरों वाली निशानी, तो आवाज़ 2 दफ़ा अदा होती है, पहले रुक कर फिर हरकत करके, जैसे आप देखें तब्बा, रब्बी को रब्बी, पहले साकिन फिर मुतहर्रिक, खुदा, खुदा जैसे लिखा हुआ है। मुड़ती हुई आवाज़ हमने सीखी कि अगर ज़बर के बाद ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है ना, ज़बर हरफ की आवाज़ को ऊपर ले जाती है, तो अगर आगे या जज़म वाली आ जाए तो या नीचे लाती है, इसलिए पहले आवाज़ ज़बर की ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी, जैसे बाई। और अगर वाव साकिन आ जाए तो सामने जाएगी, ज़बर की आवाज़ ऊपर जाकर वाव की वजह से सामने चले जाएगी, बाऊ, बाऊ, इस तरह करके। गुनगुनाती आवाज़ यह है कि जब हमारे होंठ बंद हो जाते हैं या ज़बान तालु की तरफ माइल हो जाए तो आवाज़ नाक से निकलती है, जैसे नून अन, देखें ज़बान तालु से लगी है तो आवाज़ सारी नाक से निकल आई। अगर 2 ज़बर वाला हरफ पड़े बन, तो तब भी नाक से आवाज़ गुनगुना रही है। और अगर होंठ बंद हो जाएं, जैसे होंठ बंद हो गए तो तब भी आवाज़ नाक से निकली, यह है गुनगुनाती हुई आवाज़। और अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद इन हरूफ में से कोई आ जाए, या, मीम, वाव, नून, तो तब भी आवाज़ नाक से लंबी होकर अदा होती है। और अगर मीम साकिना के बाद मीम या बा में से कोई हरफ आ जाए तो तब भी आवाज़ नाक से गुनगुना के लंबी होकर अदा होगी। इसको गुन्ना या इख्फा कहते हैं। छुपती हुई आवाज़, कभी आवाज़ अगले हरफ में छुप जाती है, आवाज़ बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, और वो आमतौर पर उस वक्त होती है जब नून जज़म वाली या तनवीन के बाद लाम आ जाए या रा आ जाए, मिल्ला, मिर्रा, तो फिर नून की आवाज़ छुप जाती है। और यही 2 हरफ हैं जिन पर अगर ज़बर या ज़ेर या पेश कोई हरकतें बदलें तो इनकी आवाज़ कभी मोटी हो जाती, कभी बारीक। ये आइंदा लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। आपने फरमाया था कि हमें प्रैक्टिस करवाएं, तो मैं आपको सूरतुल फातिहा से प्रैक्टिस करवाता हूँ।
آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھ سکتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک ایک یا دو دو حرف کر کے پڑھوں گا تاکہ آپ کی پریکٹس ٹھیک ہو۔ الحمد للہ، الحمد للہ رب العالمین، رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ دیکھیں پہلے رکی ہے پھر آگے چل پڑی آواز، شاد آ گئی نا، کا نا، پھنس گئی آواز گلے میں، نا دو نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ تو نو ہے نا، لیکن وقت پڑھیں گے تو رکیں گے تو یہ ساکن کر دیں گے، ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ اس میں خالی حرف کچھ سائلنٹ ہو رہے ہیں، کیونکہ جب جزم آتی ہے تو خالی کی آواز چھپ جاتی ہے، شاد آ جائے تو پھر جزم اور خالی کی آواز بھی چھپ جاتی ہے، جیسے صاد سے پہلے لام اور الف اور ایک اور الف، یہ تین حرف تو بالکل سائلنٹ ہو گئے، چھپ گئے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین عم گلے سے پھنس کے نکلے گی، گلے سے آواز پھنسے گی، لائی آواز موڑ رہی ہے، زبر کی آواز اوپر، یا کی آواز نیچے، تو اوپر نیچے جائے گی، لائی علیہم صراط الذین انعمت علیہم، دیکھا زبر کے بعد یا آ گئی، مڑ گئی آواز مڑتی ہوئی، غیر دیکھیں پیش کی آواز لمبی ہو گئی، آگے واو جزم والی ہے آ گئی ہے، اس لیے علیہم غیر المغضوب علیہم دیکھیں شاد سے پہلے لام الف الف، تین حرف سائلنٹ ہو گئے، ولضالین، زبان پھول جاتی ہے اور آواز موٹی ہو جاتی ہے ضاد پہ۔ یہ دیکھیں دو لفظ ہیں، والکاظمین الغیظ، والکاظمین الغیظ، دیکھو غین اور ضا کی آواز موٹی ہو گئی، واغلظ علیہم
वग़्लुज़ अलैहिम, आवाज़ मोटी हो रही है, तो आपने ये पीछे गुजरी हुई आवाज़ों की मशक कर ली। देखिए ये एक कॉलम बनाया है जिसमें आवाज़ें मिलती जुलती हैं, लेकिन इसमें फ़र्क करना ज़रूरी है। कितना ज़रूरी है मैं अगले कॉलम में बताऊंगा कि ये क्यों इतना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ आप फ़र्क समझ लें। फ स, इसमें आवाज़ नरम और इसमें सख्त होगी। फ स, व ज, वो ज। छोटी आवाज़ में अदा कर रहा हूँ, वगरना हरूफ की अपनी आवाज़ जो इन हरूफ को नाम के साथ पुकारा जाए तो यूँ पढ़ेंगे फ सीन, तो ये मतलूब अभी नहीं है। यहाँ देखें, वो ज़बान को दाढ़ों से लगाएंगे, वो ज, जन्नाटा पैदा होगा। सो सो मोटी आवाज़, स बारीक आवाज़। तो ज़बान तालू से चपक रही है और मोटी हो रही है। तो इसमें चपक नहीं रही, ज़बान की नोक लग रही है दांतों के पिछवाड़े से। आ आइन यहाँ से और हमज़ा यहाँ से। क्या, इसकी आवाज़ मोटी और इसकी बारीक। है तो ये देखें, ये मिलती जुलती आवाज़ें हैं। हम बर्रे सगीर वाले क्या करते हैं, इन हरूफ की आवाज़ इस तरह अदा करते हैं जो कि माने में तब्दीली पैदा कर देती हैं और लफ्ज़ बिल्कुल बिगड़ जाता है। जानबूझ के किया जाए, गफलत से किया जाए तो गुनाहगार होंगे। सीखते हुए करें, कोई मसला नहीं है, सीखते रहें तो ठीक होते जाएंगे इंशाअल्लाह। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर इन हरूफ में फ़र्क नहीं करेंगे तो माने में कितना फ़र्क आएगा। हबतुन, 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 हबतुन। हब्त माना होता है उचक लेना और हब्त का माना है गिरा देना। एक है उड़ते हुए, जैसे परिंदा कोई चीज़ उचक लेता है, और अगर उसके मुंह से नीचे गिर जाए तो वह हबत है, और लेके उड़ जाए तो हबत है। तो कहाँ ऊपर कहाँ नीचे, माने में कितना फ़र्क आ गया। सिर्फ हा और हा के अंदर अगर फ़र्क आ जाए। यअलमु, यअलमु, यअलमु आवाज़ फंस रही है, यअलमु आवाज़ झटका दे रही है। ये हमज़ा है और ये आइन। यअलमु वो जानता है, यअलमु वो तकलीफ़ देता है। आजिलन, आजिलिन, आजिलन जल्दी करना, और आजिल ज़रा देर करना, ताख़ीर से करना, लेट कर देना। आबसा उसने फजूल किया, और आबसा उसने मुंह यानी तेवरी चढ़ाई, माथे पे शिकन ले आया, गुस्सा किया। आबसा उसने फजूल काम किया, और आबसा देखे सा और सा, ये आवाज़ नरम और ये सख्त। अगर इसको हम सख्त कर देंगे तो ये लफ्ज़ अदा होगा जिसका माना गुस्सा करना है। देखें, बसरा उसने देखा, और बसरा उसने मुंह बसोरा यानी नाराज़ी का इजहार किया। कौल, कैल, कौल मोटी आवाज़ है, काला नॉर्मल आवाज़ है, बारीक। तो माना कौल कहा, काला उसने मापा, जैसे बर्तन से दूध मापते हैं तो कैल करते हैं। अलीमुन, अलीमुन, अलीमुन जानने वाला, अलीमुन तकलीफ़ देने वाला, दर्दनाक। लबिसा रहा, लबिसा पहना, यह है इसका माना ठहरा और इसका माना पहना। सा और सीन की आवाज़ में फ़र्क होना चाहिए। कौदूरा वो कुदरत वाला हुआ, ताकत वाला हुआ,
कादूरा वो गदला हुआ, नफरत वाला हो गया। कसरा, कसरा, कसरा ज़बान ऊपर के दांतों से लग रही है और कसरा ज़बान नीचे के दांतों की तरफ जा रही है, तो सीटी पैदा हो रही है, इसमें नहीं। तो ये नरम और ये सख्त। कसरा उसने ज़्यादा कर दिया और कसरा उसने तोड़ दिया। तो माने में कितना फ़र्क आ गया है। नसबुन थकावट, नसबुन निस्बत या ताल्लुक़, क़दहन पाँव मारना, जैसे घोड़ा दौड़ता है तो अपने सुम ज़मीन पे मारता है ज़ोर से, तो टाप पैदा होती है। और कदहन कशा कशा जाना, यानी दौड़ते हुए जाना। यतबउ वो ठप्पा लगाता है, मोर लगाता है, और यतबउ वो इत्तिबा करता है, पैरवी करता है। तो यत और यत, यत यत, तो और ता में फ़र्क करना होगा। इसी तरह ये भी हैं। मैं फ़िलहाल इसी पर इक्तिफ़ा करता हूँ। उम्मीद है आपको फ़ायदा हुआ होगा। क्या फ़ायदा हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस तरह की मज़ीद मश्क आप देखना चाहें तो इसकी प्लेलिस्ट में 50 वीडियोज़ पहले से मौजूद हैं। उनको आप सुन के पूरी नमाज की तजवीद के साथ तिलावत सीख सकते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।